ابو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری سنی ہانسی بریلی گزارش کرتے جیسے کہ ایک ندوہ کے عالم سے بات ہوئی، ندوہ کے عالم ہے اور اس کے حال یہ دیکھیے اپنے آپ کو دیوبندی بھی نہیں کہہ رہا ہے اور اشرف علی تھانوی کو مان بھی رہا ہے۔ اشرف علی تھانوی کو مانتے ہوئے بھی دیوبندی اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہے۔ بولے آپ کیا دقت ہے، یہ ہے وہ، مطلب وہ جانتا ہے کہ کیا قابلین میں کفر اتنے بکے ہوئے ہیں تو اس کو دھو نہیں پا رہا ہے، تو اس طریقے سے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہتا ہے کہ میں اشرف علی تھانوی کو مانتا تو ہوں لیکن ان کے جو بات غلط ہے ہم ان کو نہیں مانتے اور جو بات صحیح ہے ان کو مانتے ہیں۔ اب کس طریقے سے اپنی جان، اور یہاں پر اعلیٰ حضرت مانا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کی باتوں کو بھی مانتے ہیں اور جو بات ان کی غلط ہے نہیں مانتے اور جو بات صحیح ان کو مانتے ہیں۔ تو ان کو کیسے پتا کہ بات کون سی غلط ہے کون سی صحیح ہے؟ بات دراصل یہ کہ یہ لوگ نفس پرست انسان ہے۔ پہلے آپ یہ پوری ریکارڈنگ سن لیں، اس کے بعد مزید آپ سے میں تبصرہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ تقریباً 25 منٹ کی ریکارڈنگ آپ سنیں کہ کیسے یہ کس قدر عزت میں منافق کر رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ریکارڈنگ میں سن لیجئے، اس نے کہا تھا کہ ہماری طرح بشر ہے۔ کیا کہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرف بشر ہے۔ جب میں نے وہ بات سے پکڑ کی کہ کسی صحابی نے، اور اس نے یہ بات کہا تھا کہ ہم حدیث سے دکھائیں گے، جب ہم نے اس سے مطالبہ کیا کہ حدیث سے تم کو دکھانا پڑے گا، میں کتاب لے کر بیٹھا ہوں، تو فوراً بات کو پلٹ دیا، کیونکہ اس نے کیا کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری طرف بشر ہے، صرف یہ کہا کہ بشر ہے ضرور بشر، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ بات کہہ دی تھی، بات کو پلٹ دیا۔ ہم نے آخر تک مطالبہ کرتا، آپ ریکارڈنگ میں سن لیں، اس نے کہا تھا کہ ہماری طرف بشر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتے دیوبندی منافق۔ آپ سن لیں، پھر میں آگے مزید تبصرہ کرتا ہوں۔ ہلو ہلو This call is now being recorded. ہیلو جی، میں صادق علی بات کر رہا ہوں گجرات طرف سے۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ محمد احمد، محمد احمد صاحب بات کر رہے ہیں۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لکھنؤ سے۔ مجھے آپ کا نمبر ملا تھا واٹس ایپ پہ، کسی نے دیا تھا، تو جی آپ ندوہ سے پڑھتے ہیں؟ جی جی اچھا، وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ندوہ پڑھتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے اور آپ جی اشرف علی تھانوی صاحب کو مانتے بھی ہیں، جی مانتے بالکل۔ تو دیوبندی وہ ہے مانتے بھی ہیں اور آپ اشرف علی تھانوی صاحب کو مانتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو دیوبندی بھی نہیں کہتے۔ دقت کیا ہے آپ کو؟ نہیں، میں دقت نہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں، کنفیوژن ہو ذرا تھا کہ میں آپ سے کس طریقے سے بات کروں۔ جی میں ذرا کنفیوژن میں ہوں کہ مطلب آپ ان کو مانتے بھی ہیں اور دیوبندی بھی نہیں کہتے۔ ذرا کچھ ایکسپلین کریے، مجھے ہیلو بتائیں تو پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ جی میں کہہ رہا ہوں ذرا ایکسپلین کریے، ذرا بتائیں کہ مطلب آپ ان کو مانتے بھی ہیں اور پھر اپنے آپ کو دیوبندی بھی نہیں کہتے، پھر آپ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اہل سنت والجماعت سے اہل تعلق سنت رکھتے ہیں۔ حنفی کہتے ہیں؟ دقت کیا ہے آپ کو؟ دقت کیا ارے ہے؟ ہم حضرت جس کو بھی دیکھیے، اب مانے، اس میں بات میں دقت کی کیا بات لا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ کا دقت مکمل کیا ہے تعارف بتائیے ہو۔ تو۔ مکمل دقت یہ تعارف بات کی ہے، کیا ضرورت ہے؟ کیوں مکمل تعارف ضروری آپ نہیں ہے؟ اپنا سنیے، ہم ان سے بہت بات کر چکے، ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹے تک ان کو ہم نے ٹائم دیا تھا، 1 گھنٹے تک بات کیا اور ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے۔ چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 1 گھنٹے وہ بات لوگ کریں 2 گھنٹے وہ بات لوگ کریں، وہ سنیے کوئی مسئلہ نہیں میری بات ہے۔ سن لیجیے، جی وہ لوگ 1 نمبر کے جاہل، ٹھیک، بار بار وہی بات کرنے والے کہ تمہارے اکابر نے کہا، تمہارے اکابر نے کہا۔ میں کہہ رہا میں دیوبندی ہوں ہی نہیں بھائی، جب تو میرے اکابر کیسے کہہ رہے تم؟ میں جو اچھا، تو بات یہ اچھی ہوں باتوں کو لیتا ہوں۔ احمد رضا خان صاحب جو تھے، جی آپ مانتے ہو نہ مانتے، میں نہیں کہہ رہا آپ مانتے، ان کی بھی جو باتیں اچھی لگتی ہیں ان کو میں لوں گا، جو اچھی باتیں نہیں ہیں ان کو نہیں لوں گا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ لیکن ان کی اچھی بہت باتیں سارے بہت سی ہیں۔ قبر سنیے سن لیجیے میری بات تھوڑی سی ہلکی سی، تاکہ اسی سننے میں میرا تعارف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی فرمائیے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ کسی قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا یہ کیا ہے؟ وعلیکم حرام السلام، خیریت سے ہیں؟ کب آئے؟ حرام ہے۔ ابھی ہم آئے۔ ہاں ہاں جی، جی سجدہ تعظیمی ہم یہ حرام کہہ رہے ہیں کہ مطلب سجدہ تعظیمی بھی غلط لکھا ہے کہ سجدہ تعظیمی
दुरुस्त नहीं है और सद्दे क्या बोलेंगे, मतलब कहना हमारा ये है कि उसमें इस तरह का लिखा है कि जी ऐसा करना नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। अक्सर बरेली, अक्सरियत 95% की अक्सरियत, थोड़ी बहुत जो पढ़ी लिखी है वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप चाहे जहाँ चले जाएं, तो इस बात को मैं मानता हूँ नजर खान साहब ने सही और है औरतों को कि जो मज़ारात पे जाने के कब्र ताल्लुक को से तवाफ सारे, करना। एक मिनट एक मिनट सुने दो। सुनिए, औरतों को हाँ, तो आप आवाज लंबी आपकी बात कट करेंगे, रही है। मुझे आवाज़ आपकी कट रही है। मैं तो बिल्कुल सही जगह पर छत पे हेलो, हूँ। आप थोड़ा सा ऐसी जगह पर है जहाँ पे आवाज नेटवर्क नहीं आपकी बहुत कट रही है। है। मेरी आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ कट रही होगी। आप शायद कहीं अंदर अंडरग्राउंड में है या फिर ऐसी जगह जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैं तो इधर टेरेस पे हूँ। मेरे में तो एकदम 5G चल रहा है भाई, मैं इस जगह जैसी जगह हूँ मेरे। 5G चलते, मेरे में भी 5G है भाई। मैं छत पे हूँ, हाँ, एकदम नेटवर्क फुल फुल नेटवर्क आ है। रहा है, मैं अंडरग्राउंड में कहीं और नहीं, बिल्कुल मैदान में खुले हूँ। आ रही है अब और आप बस। अब सुन लीजिए दूसरी बात। जी फरमाए। अहमद रजा खान साहब ने सूरे कहफ आखिरी आयत, आयत नंबर 110 आखिरी आयत, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, इसका तर्जुमा जो किया है, इसमें कहीं लिखा ही नहीं है मैं बसूरत बशरी, मतलब दिखने में तो बशर हूँ लेकिन मैं तुम जैसा नहीं, इस तरह का तर्जुमा किया जिससे साफ साफ बशरियत का इनकार किया। इसको मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ और बिल्कुल गलत कहता हूँ कि अहमद रजा खान साहब ने बिल्कुल गलत कहा है। हमारे नबी बशर थे और कुछ नहीं थे, बशर थे, ठीक है, अब सुने अफजलुल सुने बशर सुने, थे, सबसे कुरान बड़े का भी जरा बशर थे, ऐलान सुन उनसे लीजिए। ऐसा पूरी कुरान का भी दुनिया तो है। जरा ऐलान सुन लीजिए। अल्लाह आपने कहा सुनिए, हजरत हजरत। अल्लाह के बाद जिस जात, जो जात सबसे बड़ी है वो रसूलुल्लाह की है। ठीक है, इस बात को मानते हैं, आपने बशर इतनी लंबी मानते हैं बात की। बशरियत। जी ठीक वलकद ठीक है ठीक है करमना ठीक है बनी आदम। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे तो बोलने थे। आपने तकरीबन बहुत लंबी बात की, मुझे तो बोलने थे। आपने कहा बशर मानते हैं, कुछ भी नहीं होता आवाज बहुत कट रही बशर। है आपकी, आपकी आवाज़ कट रही होगी, आप थोड़ा सा बाहर में आ जाए। मैं तो इधर फिर से नेटवर्क लगाइए फिर से। का ठीक है, फिर से लगाता हूँ। हेलो This call is now being recorded. जी, हेलो जी, अभी आ रही है आवाज़ बराबर? वाकई हेलो कट रही है आपकी आवाज, ऐसे नहीं, हल। हमारे तो ऐसा कोई मसला नहीं। हमने तो अभी कई लोगों से बात की, फिलहाल ऐसी तो कोई किसी ने शिकायत नहीं की। ऐसा मसला तो हाँ, नहीं होना चाहिए। अभी आ रही है, जी अभी देखिए अभी आ रही है, जी, बीच बीच में कटने लगती है। जैसे कि अभी आपने कहा था कि हम बशर मानते हैं या कुछ भी नहीं मानते, ठीक है ना? तो नहीं आ रही है बशर आवाज, दूसरा कोई नंबर है आपका? आवाज नहीं आ रही है। आपका कोई दूसरा हो नंबर सकता है? है हमारा ही मसला हो। जी जी, आपकी तरफ है। मैं तो इधर टावर के नीचे ही बैठा हूँ जस्ट तब तो जस्ट बिल्कुल जस्ट नहीं आ रही भाई, अगर कहें तो हम आपको रिकॉर्डिंग भेज दें। नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैं भी कर रहा हूँ और आपकी भी आवाज़ नहीं आ रही है। और मेरा तो ऐसा कोई मतलब नहीं, मैं तो टावर के नीचे ही बैठा हूँ, जस्ट 10 कदम की दूरी पर हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है ना कि खाइए आप कोई ऐसी जगह पर हैं खाइए जहाँ पे खाइए। मतलब नेटवर्क का मसला है। अंदर होंगे, मस्जिद मस्जिद या मदरसे में कहीं पर अंदर होंगे शायद आप। नहीं भाई, हम्म, अंदर नहीं बाहर ही है। अभी तो आवाज़ आपकी बराबर आ रही है। हाँ अभी तो आ रही है। हाँ जी जी, हम कह रहे हैं कि अभी आप मुझे शुरू करने दीजिए। हम कह रहे हैं कुरान बशर 3 लोगों ने कहा। एक तो अल्लाह ने कहा अंबिया अलैहिस्सलाम को बशर, ठीक है ना? और दूसरा अंबिया जी अलैहिस्सलाम ने खुद अपने आप को बशर कहा, ठीक है? तीसरा वो थे जो मुनाफिकीन थे, जो अंबिया अलैहिस्सलाम को बशर कहते थे। किसी सहाबी ने तो जी, नहीं कहा कि आप बशर है। पहला मैं अल्लाह दिखा ताला दूं, अल्लाह मैं दिखाएंगे, आप दिखा दूं जरूर सहाबिया दिखाएंगे। को। जी बिल्कुल दिखाएंगे दिखाएंगे। दिखाएंगे। जी जी, आप बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ, देखिए फिर वही चीज देखिए, जब अल्लाह मैं ताला ने दिखाऊंगा अंबिया ना, अलैहिस्सलाम को। सुनिए हाँ जी। हम्म, सुनिए, जब मैं दिखाऊंगा ना तब आप हम्म। ये कहेंगे कि उन्होंने तो ये नहीं कहा नूर नहीं है, ये कहेंगे आप। नहीं नहीं, हालांकि जब हमारी तरह वही बशर चीज, है वो यही आपको चीज दिखाना उल्टा पड़ेगा। घुमाते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा, जैसे आपने कहा ना कि हमारी हम तरह आपको बशर है, हदीस वो नंबर अल्फाज आपको। बताएंगे, हदीस की जी किताब बताएं। बताएंगे, जी आपको बताएं। इंटरनेशनल नंबर बताएंगे, लेकिन आप जी बात बताएं, पूरी मैं करिए, किताब लेकर बैठा बता हूँ। देंगे, जी बता देंगे देखिए, आपको। फिर हाँ, अल्लाह ताला ने कहा आमिया अलैहिस्सलाम को जी बशर। आमिया अलैहिस्सलाम ने खुद अपने जी आप को बशर कहा, ठीक है ना? और जी तीसरा तबका वो था जो मुनाफिकीन था, काफिर था या मुशरिक था, जिसने कहा जी। आप बशर हैं। चाहे हज़रत नूह हम्म अलैहिस्सलाम को कहा, ए, जितने हमको कुरान में मिलते हैं वाक़यात, ठीक है ना?
हाँ उसमें कई लोगों को चलिए। अब कई इन अम्बिया इन अलैहिस्सलाम, सब सुन लीजिए देखिए अल्लाह हजरत ताला हजरत मेरी इन बात सब की हो रोशनी जाने में दीजिए, मेरी बात हो जाने जी देना। अल्लाह ताला ने कहा और अम्बिया अलैहिस्सलाम ने कहा। तीसरा वो था जो मुनाफिकीन या काफिर, आपने कुरान पढ़ा होगा तो जरूर उसमें पढ़ा होगा कि अम्बिया जी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल भी जानते अम्बिया अलैहिस्सलाम को कहा, ठीक है ना। अब आपने कहा जी। कि सहाबा इकराम ने कहा है कि आप हमारी तरह ही बशर हैं, तो फिर वो हदीस आप हमारी तरह बताइए मुझे। ये आप अपनी तरफ से बढ़ा रहे, हमारी तरह कहाँ लिखा है? भाई अभी तो आप कह रहे हैं कि सहाबा इकराम ने कहा है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। ये नहीं कहा है हमने। हम तो साफ कह रहे हमने हैं कि कहा कि किसी साहबी सहाबा ने से कहा ही नहीं। बशर 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 सहाबिया ने को मानते हमारी हैं, आप तरह सहाबी यहाँ थे ना? रिकॉर्डिंग में मौजूद है, अभी आपने कहा हमारी हाँ तरह ही बशर है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप बात ना पलटें। आप रिकॉर्डिंग में आपकी तरफ भी रिकॉर्डिंग, आपने कहा हमारी तरह ही बशर है, वो रिकॉर्डिंग वो सहाबा इकराम हमारे का पास तो भी अकीदा ही रिकॉर्डिंग नहीं। मौजूद है। हमने हमारी तरह का कहकर बताया है कि बशरियत में तो हमारी तरह है, लेकिन अफजलुल बशर हैं। वलक़द बस वो कर्रमना चीज बनी आपको आदम में। दिखाना होगा कि हमारी तरफ बशर सहाबा इकराम तो दिखाना पड़ेगा। मैं किताबें लेकर बैठा हूँ, आप सिर्फ किताब का नाम हाँ बताइए और हदीस नंबर किताबें बताइए। लेकर देखिए। जी। बशर बशर मानते हैं कि नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अब आप आप बात को ना घुमाएं, आप नहीं। वो सहाबा इकराम दिखाइए, हमारी तरफ बशर या रिकॉर्डिंग मौजूद है। हाँ हमारी तरफ रिकॉर्डिंग बशर हमारे तो पास भी मौजूद है। हमारी तरफ बशर तीन लोगों ने कहा, अंबिया अलैहिस्सलाम ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुकुम, ये कुरान की वही कुरान की आयत में मौजूद बशरुकुम है, नहीं, ठीक है ना। बशरुम मिसलुकुम है। हाँ बशरुकुम बशरुम नहीं है, मिसलुकुम, हाँ। बशरुम मिसलुकुम। और उसके बाद जो तबका था मुनाफिकिन या काफिर और मुश्रिक का था, ये हमारी तरह नहीं, अल्लाह बशर है, ताला ये ने जो ये काफिर ने बात कहा। कही है, हमारी अल्लाह तरह ताला ने बशर जो है, ये ये बात कही, काफिर ने कहा, सुनिए। किसी मुसलमान ने नहीं कहा। अल्लाह जी ताला ने बताएं। जो अल्लाह हम्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ये कह दीजिए कि मैं तुम हम्म, जैसा बशर हूँ। यूहा इलैहि, फर्क ये है कि हम्म, मुझ पर वही आती है। ठीक। ये अल्लाह बोलते रहे ताला ने बोलते जो रहे। कहा, इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल, हमने तो 3 मरतबा कहा। हाँ तो फिर फर्क क्या है फिर? तो अभी आपने आपका कहा एतराज हमारी क्या तरह है? बशर है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, अब हमारी तरह बशर है आपने कहा, और आपने कहा किताब में हम दिखाएंगे, हमने हाँ, कहा किताब हम हमारी लेके तरह बैठे हैं, मौजूद। आप मुझे दिखाएं। हाँ हमारी तरह बशर ने तो किसी इस साहबी ने बात नहीं कहा, से आपने कहा देखिए, किताब में हम सुनिए। दिखाएंगे, आप मैं दिखाएं। दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाऊंगा, जी सब्र दिखाइए, कीजिए, जी सब्र दिखाइए। कीजिए। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि सहाबा से मैं ये दिखाऊंगा कि हमारी तरह वाला। तो फिर कैसे दिखाएंगे, सहाबा ने अपने काबिल की किताब अल्लाह से के दिखाएंगे। रसूल को बशर माना है। आप लोग डायरेक्ट बशर ही नहीं मानते, ये हाँ नहीं नहीं वो तो आप बशर ही नहीं अपनी बात मानते। तो पहले आप अपनी दावे पर दलील दीजिए, फिर आप मैं अपने आइएगा हमारी दावे तरफ। पर आप दलील बशर ही नहीं दूंगा, ठीक मानते है। हैं, हम तो अभी बहुत लेकिन हवाले देंगे, आप आप मानते क्या मानते क्या नहीं मानते हैं, आप अपने हमारी तरफ बात अहमद नहीं रजा आइएगा। खान साहब के तर्जुमा कंजुल ईमान या क्या, कौन सी किताब तो है, वहाँ तो वो आप आगे पढ़िए। जाएंगे बाद में, पहले आप अपने दावे पर तो दलील आगे दीजिए। पीछे हमारी नहीं। तरफ यह रिकॉर्डिंग मौजूद है, आपने कहा हमारी तरफ बशर है, पहले आप आपने कुल कहा इन्नमा सहाबी से अना दिखाएंगे बशरुम रसूल। मिस्लुकुम, इससे बड़ी दलील क्या है? हम आपके तरफ बशर है, वो नबी म- करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफजलुल बशर, बशरियत में हम जैसे। आप अभी आपने कहा हमारी तरफ बशर है, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, देखिए अभी आप रिकॉर्डिंग बात ना आप पलटे। भेजिए, आप भेजिए रिकॉर्डिंग। जी रिकॉर्डिंग भेजिए रिकॉर्डिंग या सुनाइए। आपके पास भी सुनाइए, रिकॉर्डिंग हो रही है जनाब, हमारे पास भी। हम सुनाइए तो तो। इसको यूट्यूब पर डालने वाले हैं, दिखाएंगे ना। इसको तो यूट्यूब पर सुनाइए। डालेंगे, अपलोड होगा तो लोग देखेंगे ना कि वैसे आप बात को पलट। आपने ये बात भी कही है कि हम सहाबी से हाँ वो तो दिखाएंगे मालूम हमारी है, तरफ बशर। ये सब। हाँ ये सब मालूम है। तुम्हारे पास जब कुछ, तुम लोग के पास कुछ रहता नहीं ना, ये तो देखिए, आप यही घबराए ना, रिकॉर्डिंग करके घबराए ना। अगर डालोगे। आपने बात मैं सच्ची कही है ना तो घबराऊंगा अब नहीं, देखो घबराए मैं ना। घबराऊं। मैं अब बार बार घबराए ना, यही कह रहा तो हूँ। आपने बात उस सच्ची वक्त कही है, भी कहा यह था, रिकॉर्डिंग मुझे मौजूद घबराने है। की जरूरत नहीं है। हम हाँ तो ठीक है, अब रिकॉर्डिंग अभी मेरे से इस पास तरह भी की बात नहीं मौजूद है, करेंगे। ठीक है। मैं भी यूट्यूब जी पर जी डाल जी। सकता हूँ, ठीक है। डाल सकते नहीं, आप ऐसे नहीं, डालिए, फिर लोगों को दिखाइए कि आप कैसे मुझे दो डालना ही तरीके नहीं है ये सब। ठीक है, मत डालें, वो आपकी मर्जी। हाँ हम तो मैं जो जो डालेंगे, चीज दिखाएंगे कि डालता हूँ, आपने ठीक, डालो, सुने सुने बिल्कुल सुने डालो। सुने। हम अभी गंगे आपने की चोट कहा पे था, कहते सुने हैं। नहीं, आपने कहा देखो था कि भाई तुम जो कहते हजरत हो, तुम सुने तो लोग जो सही। कहते हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि सिर्फ नूर थे, नूर। सिर्फ ठीक है। नूर से ऐसा कहा आपने, बशर मानते ही ऐसा कहा नहीं। हमने। अगर हम बशर किताब में तुम दिखा देंगे नहीं तो आप कहते हो, मानेंगे। तुम्हारे अहमद रजा खान कहते हैं ना। जनाब तुम जनाब नहीं मैं कह कहते रहा हूँ हो, तुम तो बशर अगर हम दिखा देखो देंगे तो देखो अहमद रजा खान फतावा की रज़िया नहीं इबारतों को दिखाएंगे हम। बदल देने से या उनको हम फतावे, मिटा कर पहली बात अपनी। तो कुरान का तर्जुमा वो कोई अकीदा नहीं बनता है जनाब। हम तो अपनी घर की हाँ किताब से दिखाएंगे, फतावे रज़िया से तो दिखाएंगे। अहमद रजा खान को कौन नहीं सारी मानते? किताब, आप तो तो कुरान का अहमद रजा तर्जुमा, खान का अगर तर्जुमा कुरान का नहीं मानते तर्जुमा, हो? भाई अगर आप कुरान का अहमद रजा तर्जुमा खान मानेंगे साहब तो आप ने तो जो काफिर हो तर्जुमा किया जाएंगे। है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं जनाब सुने सुने, आप बशक्ल कुरान के तर्जुमे बसूरत सुने आप। बशरी में तुम जैसा हूँ। हेलो हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप कुरान के तर्जुमे से अकीदे बनाएंगे तो हम आपके घर का कुरान का तर्जुमा पेश करें। हम आपके घर का तर्जुमा नहीं, आपके कुरान अहमद कुरान का रजा तर्जुमा खान पेश जो करें। आपके सबसे जिस। भाई अगर अरे आप मैं भाई कुरान के जिस तर्जुमे से जिन पर। अकीदा बना रहे हैं हजरत, मैं आपके घर का हाँ तर्जुमा कुरान पेश करूं, आप मानेंगे?
आपके सबसे बड़े इमाम, आप अरे उनका जनाब तर्जुमा नहीं उसूल मान बात रहे। कर, उसूल भाई हम तो मानेंगे, हम क्या करें? उस अगर आप कुरान के तर्जुमे से अकीदा बना रहे हैं तो हम आपके घर का तर्जुमा कुरान बताएं, आप मानेंगे? उसूली बात करें ना। बिल्कुल आप बताएं। हमारे घर का तर्जुमा, बिल, ये सूरह फतह की आयत, बिल्कुल। सूरह फतह की आयत में क्या है कि आप इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, ये कुरान की आयत है ना। क्या इससे जी पहले आप ये भी नहीं जानते थे कि ईमान क्या है और किताब क्या है? तो आप, ये आपके कुरान के तर्जुमे में, बैनुल कुरान में और तमाम आपके उलमा ने तर्जुमा किया कि इससे पहले आप ईमान भी नहीं जानते। तो ईमान नहीं जानते तो फिर नबी अलैहिस्सलाम क्या थे? आप बताएं। हम्म, आपके तर्जुमा बैनुल कुरान और आपके सारे तर्जुमा उठा के देख लीजिए। जी हमने आपको कुल्लम कुल्लम पता दी, आपको ये भी नहीं पता था कि ईमान क्या है और किताब क्या है। तो आप तो नबी अलैहिस्सलाम को तो ईमान से खारिज कर रहे हैं, आयत मादल नंबर बताइए। पारा नंबर 26 सूरह फतह की आयत नंबर 2। किसी का भी सूर्य तर्जुमा उठा नंबर लीजिए आप, ऐसा बोले हाँ सूरह नंबर 2 आयत नंबर सूर्य हाँ सूरह फतह की आयत नंबर 2 उठा लीजिए, बयानुल कुरान आपका ऐसा अली थानी साहब का तर्जुमा। हम्म, उठाइए पढ़िए तर्जुमा। जब आप अकीदे तर्जुमे से बना रहे हैं तो फिर अभी हम आपको बहुत सारा तर्जुमा दिखाएंगे, फिर आप उसको ढोते रहें। और यहाँ तक ये तर्जुमा है कि ववज़ा, ये सूरह दुआत में है कि ववजदा का दालन फादा, तो हमने आपको मादल्ला गुमराह पाया तो हमने आपको राह दिखा जी दी। ये आपके तर्जुमा में मौजूद है। तो आप तो मादल्ला नबी अलैहिस्सलाम हाँ, को गुमराह कह रहे हैं। यही तर्जुमा है हमारे उस्ताद हम नबी ने। ये ववजदक ज़ालिमन फहदा का जो तर्जुमा किया है, जिन्होंने भी किया है, ठीक है, ये हमारे उस्ताद हम नदवी में पढ़ते हैं। हमारे क्या उस्ताद साहब ने साफ तौर पर बताया था कि जिसने भी तर्जुमा किया है, इन्होंने बिल्कुल गलत किया है, ये गलत तर्जुमा किया नहीं है ना? करना था। ये तो आपके अशरफ अली बिल्कुल थानी गलत साहब ने किया। भी किया बैन कुरान में। हाँ, जो भी किया हो, गलती इंसान गलत से किया होती ना, है। तो वो तो गलती नहीं, ये कुफ्र है जनाब, गलती नहीं। गुमराह का है मैं नबी भाई, अलैहिस्सलाम को, गुमराह का है गुमराह। आप उनकी हाँ गलती ना कहें, हाँ, गुमराह तो का फिर है सुनो नबी सुनो, अहमद नबी रजा खान अलैहिस्सलाम को काफिर है। गुमराह का है मादा लड़ अहमद आला के तर्जुमा में है अहमद ही नहीं रजा वो। खान काफिर है। सुने तो, आला के अहमद रजा तर्जुमा में खान वो है ही काफिर नहीं। थे। वो आला कहाँ जा हजरत रहा का तर्जुमा है, आला हजरत बशरियत का वो? इनकार करके कुरान का इनकार अरे कर रहे जनाब, हैं। हम तो वो तो तर्जुमे पर बशरियत का अकीदा ही नहीं इनकार बना करके, रहे, अल्लाह आप के तर्जुमे रसूल पर की अकीदा बशरियत का बना रहे हैं ना इनकार करके आपको बशर मान ही नहीं भाई। रहे। हम आपको तो अफजल कुरान के तर्जुमे वलकद पर हम करमना सुनो सुनो बनी सुनो आदम से मान ही नहीं रहे। सुनो सुनो, हम कुरान के तर्जुमे पर अकीदा बनाए रहे। हम तो कुरान के तर्जुमे पर बात कर रहे हैं, आप आवाज बहुत कुरान के कट रही तर्जुमे पर। तुम्हारी, हम आवाज बहुत कुरान कट के रही है। तर्जुमे पर, हम कुरान के तर्जुमे पर तो अकीदा नहीं बना रहे, आप कुरान के तर्जुमे पर अकीदा बना रहे हैं। तो फिर आप अपने कुरान के तर्जुमे को ढोइए ना, हम तो उस पर अकीदा नहीं बना रहे हैं। फिर मतलब अहमद रजा खान को तर्जुमे को नहीं मानते आप? अरे जनाब, हम तो मानते हैं, उससे अकीदा थोड़ी बना रहे। कुरान का तर्जुमा है, तर्जुमा अकीदे किससे बनते हैं? कुरान और हदीस से बनते हैं, कुरान के तर्जुमे से बनते हैं। कुरान का तर्जुमा तो कोई भी कुछ कर देगा, कुछ करेगा। तो हम तो अभी आपके 2 तो आयत कोई बताए, भी अभी तो कुछ कर बहुत सारी देगा, आयत बता देंगे। मतलब अपने मन अहमद से रजा बहुत खान कुछ सही कर सकते किया हैं, है, हिंदी में, तर्जुमा या अंग्रेजी नहीं में। किया? बहुत सारे तर्जुमे में फर्क देखो, है, जमीन और आसमान का फर्क है। अभी तो मैंने आपके कुरान मैं के ये कह रहा हूँ, आपके घर मैं के आपसे तर्जुमे के 2 सिर्फ ये बताए। पूछ रहा हूँ, हम्म मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं यही कहता हूँ कि मुझे कुरान का टेक्स्ट सिर्फ मानना है। कुरान में जो अरबी लिखी है, कुल हाँ, कह वही दीजिए बात मैं इन्नमा। कह रहा हूँ, कुरान का टेक्स्ट देखो, मानना पड़ेगा, कुरान के तर्जुमे पर ना जाइए, नहीं तो फिर आप कहीं के नहीं रह हाँ जाएंगे। यही हाँ, तो तो मैं वही समझाने की चीज। कोशिश कर रहा फिर हूँ, कुरान के तर्जुमे मैं पर ना समझ, जाए, नहीं तो फिर देखो आप तो तुम्हारे अपने समझाने से मैं नहीं समझाऊं, मैं तुम्हारे यहाँ समझाने तो से नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, समझाऊं। किसके समझाने से नहीं समझे। जब आपके घर पे बात हाँ, आई ना तो फिर आप देखो आपके दुम पर लात पड़ी तो आप देखो, ये इधर उधर तुम घूमने लगे। बहुत बड़े तुर्रम खाना बनो। देखो, मैं मुफ्ती यासीन नदीम, अरे जनाब, मुफ्ती कुछ यासीन भी हो, नदीम अलवाजिदी, आपके कितने सुन लो बड़ी भाई थोड़ा मुफ्ती हो सा। जाए हैं। जी फरमाए। मुफ्ती यासीन नदीम अलवाजिदी को सुनता हूँ, उनके पास बहुत से लोग इस्लाम कबूल करते हैं, और वो लोग यही सब तर्जुमे उल्टे सीधे कहीं कहीं हुए हैं, जो किसी के भी वो लेकर आते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ ये तर्जुमा हो, तो फौरन कहते हैं कि हमको तर्जुमा नहीं दिखाना, हम आलिम हैं, हमारे सामने कुरान का टेक्स्ट दिखा है। मैं बस बार बार वही कहता मैं हूँ, बात आप कर हो रहा हूँ हजरत, सुनियो कि आप सुनो, तर्जुमा ना ये दिखाएं। बहुत खुश ना हो, ठीक है, मैं इस बात पर हमेशा से कायम हूँ और कायम रहूंगा, चाहे कायम था। अभी लेकिन आप मैं आ गए, तुमसे ये अभी पूछ आप रहा आ गए हूँ, हजरत, अभी आप आ भागे गए नहीं, हजरत। ठीक है, मैं तुमसे सिर्फ अभी ये पूछ कुरान रहा के हूँ कि टेक्स्ट पे अहमद बात रजा करने खान लगे, ने आप जो तर्जुमे तर्जुमा को किया छोड़ है, दिया। मैं उसी पे टिका हूँ। समझे, मैं कहाँ कह टिके रहा अभी हूँ आप? जब कि मैं आपके घर अहमद का रजा तर्जुमा खान ने लेकर, जो आप मेरे तर्जुमा, तर्जुमा ना दिखाइए, मैं कुरान के अरबी पर जाए, किसका अरबी पर तर्जुमा बात तुम दिखा रहे करेंगे। हो? तुम किसका? किसका तर्जुमा दिखा रहे हो?
बाप के अशरफ अली थानवी साहब का बयानुल कुरान हाँ का तो अभी गलत, मेरे पास बहुत सारे तर्जुमे हैं हाँ तो वो तर्जुमा जो गलत मैंने है। नहीं साफ हजरत, कहा कि वो गलत हुआ। नबी अलैहिस्सलाम को मादल्ला गुमराह करना ये गलत है या कुफ्र है, ये बताया था ना, ये गलत है या कुफ्र है, ये बताए। ये गुमराह कहना इससे पहले आप ये ईमान नहीं ये जानते थे तो चीज अल्लाह ये फैसला गलत है, करेंगे, गलत या लेकिन कुफ्र आपसे है? मैं ये अल्लाह पूछ रहा ताला हूँ, नहीं, लेकिन ये कुफ्र मैंने है। साफ ये कह दिया कुरान का कि ये है, गलत है। सूरह अब वो मुजादला गलत में कुफ्र हो, कुरान का। सुनो सुनो, आप अपने काफिरीन को मैंने इस तरीके से मेरे कैसे ढो सामने, पाएंगे? मेरे सामने हम्म, जो बात मेरे उस्ताद ने रखी थी वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो क्या कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, बोले बोले बोले, आवाज तर्जुमा नहीं आ किया रही थी। था, इसको हम अब आपसे हम पूछ रहे हैं, अहमद रजा खान साहब ने जो तर्जुमा किया है कि फरमाओ कि मैं ज़ाहिरी बशरी में, सूरत बशरी में तुम जैसा हूँ लिखा है तर्जुमा हाँ तो हम है। तो कह रहे हैं कि भाई नबी अलैहिस्सलाम तो खुद अपने आप ज़ाहिरी को बशर सूरत कहा है बशरी भाई। में, हाँ सुनो, ठीक है, बिल्कुल सही ज़ाहिरी बात है। सूरत बशरी में हूँ, हाँ। सुनो तो, ज़ाहिरी सूरत बशरी में हूँ, यानी हम्म, असल में बशर नहीं हूँ मैं, ज़ाहिरी सूरत बशरी में तुम जैसा मतलब बशर यानी आप हूँ, अपने पास से, मुझे वही यानी आती है। आप अपने पास से तशरीह कर रहे हैं, ऐसा लिखा है उसमें अपने पास से जो तशरीह चीज है। नहीं, नहीं नहीं, तशरीह जाहिरी में तो नहीं, बिल्कुल, हम तो जाहिरी किसका में तो बताओ बशर तुम, तो मानते ही है, आप जाहिर में आपका बज़ाहिर बशर नहीं है। अब बातिन में क्या थे फिर, बिल्कुल नूर है, जाहिर में बशर थे, बातिन में क्या बिल्कुल थे। नूर है, बिल्कुल नूर है। हदीस शरीफ में सियासत में हदीस भरी पड़ी है, अब्दुल रज़्ज़ाक मुसन्नफ इब्न रज़्ज़ाक में और कई सारी किताबों में तो बिल्कुल किताबों में मौजूद है कि इब्न हजरत जाबिर रज़्ज़ाक रज़ी अल्लाह ताला सियासत में से। आती है, नहीं नहीं, सुनो तो, सियासत में जामे तिरमिज़ी वगैरह में हाँ है और भी बहुत सारे किताब मौजूद है। मैं तो बहुत सारे इसमें हवाले दूंगा नूर के ताल्लुक से। लेकिन आपने अभी शुरू में रिकॉर्डिंग में कहा था, क्या कहा था कि हमारी तरह बशर है, वो अल्फाज आपको सहाबी से दिखाना होगा। मैंने जब कहा था कि मैं किताब लेके बैठा हूँ और आपने कहा था कि दिखाऊंगा, पहली बात आपने दिखाने से काफिर है, दूसरी मैंने बात है कि साफ जब मैंने, तौर पे ये अरे कहा हजरत है मेरी कि मैं बात सुना है। दिखाऊंगा कि सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर माना है और बशर कहा है, सहाबिया ने बशर हमारी माना तरह है। बशर, वो आपको अल्फाज दिखाना होगा, या रिकॉर्ड मौजूद है। हमारी मुझे तरह का बोलने लफ्ज दे, मैंने यहाँ नहीं कहा था, मुझे बोलने मैंने दे, मुझे अहमद रजा बोलने दे, खान के मुझे दे, तर्जुमे में, मैंने मुझे अहमद रजा बोलने खान दे। के तर्जुमे में, जब आप मैंने बात अहमद रजा करते हैं ना, खान साहब के तर्जुमे में, मैंने अहमद रजा खान साहब के तर्जुमे में तुम्हारी जैसा बोला था उस वक्त शुरू में। मैं जहां था, मैं अपनी देखो तरह मैं बात चल कर चल रहे के थे। बात, सुनो सुनो, मैं जिस मैं भी वक्त चल बात के कर बात कर रहा रहा था, मैं बात चलते चलते बात कर रहा हूँ। मैं जब हूँ। तुम्हारी जैसे वाली बात बोला हूँ, उस वक्त सहाबी का नाम नहीं लेकर मैं मस्जिद के सामने उस वक्त था, और जब मैं सहाबी की इबारत, सहाबी की हदीस दिखाने, सहाबी का कौल दिखाने की बात कही थी, तब मैं एक दुकान पर पहुंच चुका था, और मैंने उस वक्त ये लफ्ज नहीं कहा था कि मैं तुम जैसे वाली बात कहूंगा। बस ये कह रहा हूं मैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी ने बशर माना है, और बरेलवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर नहीं मानते, चलिए, यानी बात आगे हो गई, वलकद ठीक है। करमना बनी आदम से खारिज करते ठीक हैं। है, अरे सुने हजरत, अभी जब हम तो पहली बात तो साफ कह चुके कि देखिए कुरान। कौन This काट दिया call था is now हजरत? being recorded. हेलो, 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 जी कौन काट दिया था आपने? हेलो, देखो, फोन चलाना, यहाँ बड़ा फोन चलाना मना है, क्या हुआ? यहाँ बड़ा फोन चलाना मना है। अच्छा तो सुन ले, जैसे कि आपने कहा था, आपने जब मैंने आपके घर का तर्जुमा दिखाया था तो आपने इनकार कर दिया था। हम जो शुरू में कहते हैं मेरे घर कुरान का के कोई तर्जुमे तर्जुमा नहीं है, का। मैं अरे जिस सुनिए घर ना में हजरत, रहता हूँ, मुझे बोले, हाँ, आप आपके काबरी का तर्जुमा मैं कह रहा हूँ, आप जिनको मानते हैं, जो कि आपने अशरफ अली थानवी साहब को मानने का दावा किया था कि मानते हैं, जी तो उनका बिल्कुल तर्जुमा मानते हैं, दिखा रहा हूँ। मानते हैं तो फिर बिल्कुल, मैं उनका उस तर्जुमा बात को दिखा नहीं रहा हूँ मानते ना। हैं, उस बात को नहीं मानते। बात को मानने से बात खत्म नहीं ना होती है। देखिए सूरह हम्म, मुजादला की आयत नंबर मेरे पास कितना नंबर है? सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 में मौजूद तर्जुमा में कि अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वालों को आप, अल्लाह ताला इसके रसूल के मुखालिफ करने वाले को, मोहब्बत रखने वाले को हरगिज ना पाएंगे। ये दूसरा देखो, तर्जुमा पढ़ने लगा मैं, देखो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये अल्लाह कसमें खाकर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हालांकि यकीनन कुफ्र का कलमा उनके ज़बान से निकल चुका है और ये इस्लाम के बाद काफिर हो चुके हैं। जिनके ज़बान से कुफ्र का कलमा निकल चुका है वो इस्लाम से खारिज हो गए, तो आप उनको रहमतुल्लाह ताला अलैह कैसे कह चुके? ये तो कुरान कह रहा है। अहमद हेलो, रजा खान साहब के
اشکال جو ہم نے رکھا اس کا پہلے جواب دیجیے، پھر جواب الجواب دیجیے اس کا۔ جواب ہم نے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ دیا، ریکارڈنگ موجود ہے، ہم نے کہاں بار بھی بار کہا کہ قرآن کے ریکارڈنگ ترجمے پر موجود، بار بار کہہ رہے، کیا ضرورت ہے اصولی بھائی؟ بات کریں نا، اصولی بات کریں، ہم کہہ اصولی رہے ہیں بات قرآن کے ترجمے ترجمہ، سے عقیدہ نہیں بنا رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن کے ترجمے سے عقیدہ پھر بول رہے ہیں کہ ترجمے، ہم قرآن کے ترجمے سے عقیدہ ہاں بنا رہے ہیں تو پھر ترجمے ہی آپ کو لے کر تو آپ عقیدہ بنوا رہے ہیں۔ وجدہ کا ہم کہاں ضالن بنا رہے ہیں؟ فہدہ وہ کا تو جو آپ ترجمہ بنا رہے ہیں کیا نا، ہے غلط ترجمہ، وہ اشرف صحیح ہے، وہ غلط صحیح ہے۔ ترجمہ جو کر دیا اسی نہیں، پہ آپ۔ آپ قرآن کا ترجمہ دکھا کر کے اللہ کو غلط ٹھہرا رہے کہ قرآن کا ترجمہ غلط ہے، تو ہم نے تو آپ کے گھر کے ترجمے 2 دکھائے، تو آپ ہاں تو ادھر غلط غلط ہے، کریں تو جیسے یہ ادھر غلط ہے ویسے ادھر یہ غلط ہے۔ یہ جو اعلیٰ کا ترجمہ جو دکھائے وہ کیا کفر پر مبنی ہے؟ بالکل، نبی کو بشر کیسے؟ نہ ماننا کفر پر مبنی ہے۔ عبارت پڑھے، اللہ بشر، عبارت پڑھے، اللہ تعالیٰ ترجمہ بشر پڑھے، اللہ تعالیٰ ترجمہ پڑھے۔ بشر کہلوا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، لیکن ہاں یہاں کہہ رہے ہیں ترجمہ پڑھے، پورا ترجمہ پڑھے، ترجمہ پڑھے۔ فرماؤ ظاہری تو فرماؤ ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ہوں۔ بالکل ظاہری اب صورت اس میں کا مطلب ظاہر بشریت میں ظاہری ہماری صورت جیسا نہیں ہے بشری نبی میں کریم تم صلی اللہ علیہ جیسا وسلم، ظاہر میں، ہیں؟ ظاہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسا بشر نہیں ہے، نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں مطلب ہماری صحیح بتائیے آپ۔ ظاہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ ترجمہ سوال تو آپ پوچھ بالکل رہے صحیح ہو پڑھ رہے ہیں، سوال یا نہیں، جواب؟ ہاں سوال ہی پوچھ رہے، جواب بھی دے رہا، سوال بھی کر رہا ہوں کہ بھائی اس میں ظاہری میں جب نبی علیہ ظاہری میں السلام نے نہیں خود ہے، صاحب نے کہا بشر ہی ظاہر، تھے۔ دیکھو دنیا میں صرف 3 مخلوق بستی ہیں، 3 طرح کی، ایک آگ کی بنی ہوئی جو جنات و شیاطین ہیں، ایک نور کی بنی ہوئی جو صرف فرشتے ہیں، ایک مٹی کی بنی ہوئی جو انسان، جانور، چرند پرند درند سب ہیں۔ اب چوتھی مخلوق تم لاؤ جو یہ ہو ایسی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر تو ہے، یہ بات تو پکی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، لیکن ٹھیک ہے، آپ بات ہو گئی، سنیے، ایک ایسی مخلوق لاؤ جو نور بھی ہو اور بشر بھی ہو جس طرح تم مانتے ہو۔ آج صلی ٹھیک ہے، اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک کو ہے، ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے، سے ٹھیک لوگ، تم بریلیوں میں صرف نور مانتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ بشر ارے مانتے اور ہی نہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو سیدھے سے آپ کو تو عقیدہ کتاب سے دکھا رہے ہیں، ایک کتاب ہے تو ترجمہ دکھا رہے ہیں آپ، پہلی بات تو یہ تو ترجمہ ہی دکھا رہے ہیں، میں دیکھو ترجمہ تو ہم تو بہت ترجمہ سارے دکھا، وہی سنے وہی ترجمہ وہی وہی چیز میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں قل ترجمہ تو میں انما بہت سارے انا دکھا بشر دوں۔ مثلکم میں بصورت شکلی یا ظاہری صورت بشری میں کہاں لکھا ہے انما انا بشر؟ صاف صاف کہا جا رہا ہے انما انا ہاں بشر ٹھیک ہے، کل مثلکم، انما انا بشرکم، یقیناً بالکل صحیح ہے۔ میں تم ہم جیسا ہی انسان ہوں۔ ظاہری تو صورت بشری کہنے کی تو کیا کن کو ضرورت وہ تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کس سے مخاطب تھے؟ صحابہ کرام سے مخاطب تھے، کس سے مخاطب تھے؟ ذرا بتائے تو مجھے، آیت کا پس منظر، شان نزول بتائے تو آپ بتا پھر میں دیجیے، بتاتا ہوں۔ آپ بتا دیجیے، نہیں نہیں ذرا آپ آپ بتا بیان کر دیجیے، رہے ہیں، نہیں آپ کو نہیں بتانا پڑے گا، دیکھو، آپ حوالہ پیش کرو، آپ کو نہیں بتانا مجھے پڑے نہیں گا۔ بتانا، دیکھو تمہارے یہی احمد تو رضا خان منافقت ہے، ہوتا تمہیں ہے، بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا جب ہو یار؟ معجزہ دکھایا۔ جی جیسے کہ آپ نے ریکارڈنگ سن لیا، اب اس سے آپ دیکھیں گے کیسے ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ جب میں نے اس کا ترجمہ پکڑ کی تو پھر یہ اپنے آپ کو اپنے عالم پر لے کے دیکھ دیا، ہمارے عالم یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ ہمیں مت دکھاؤ، ہمیں ڈائریکٹ قرآن کی عربی دکھاؤ۔ جب میں اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ قرآن کے ترجمے میں مت جاؤ، قرآن کے ترجمے سے ہم کیوں نہیں بناتے، آپ کتاب پیش کرو، تو پھر وہ خود مانا اس بات کو، مان کر کے پھر وہ ہوتی پر آڑا رہا۔ جب میں نے لاسٹ سمے پر کہا کہ بھائی قرآن یہ کل انما انا بشرکم، یہ سورہ صاحب کی آخری آیت جو ہے یہ کس وقت نازل ہوئی تھی، اس آیت کی شان نزول کیا ہے، تو فوراً وہ فون کاٹ کے بھاگ گیا، سر آ رہے جاؤ یار، کیوں؟ اس کو پتا تھا اگر وہ شان نزول بیان کرتا تو وہ پھنس جاتا، ٹھیک ہے نا، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جب میں نے اس کے اپنے گھر کے آصف علی کھانے کے پہلے تو اعلیٰ کی ترجمہ کا اعتراض کر رہا تھا، اور جہاں سے کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اور اس سے میں نے ترجمہ پڑھا کہ کوئی اعتراض نہیں بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل انما انا بشر ہوں، میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں، ظاہری بشر، بالکل ہم تو ظاہری بشر تو مانتے ہیں، اس میں کیا اس میں کیا فکر کی بات ہے۔ دوسری بات جب میں نے اس کے اپنے گھر کے ترجمے دکھائے، سورہ فتح کی آیت نمبر 2 اور سورہ رعد کی آیت نمبر سورہ رعد کی آیت نمبر 4 بتائی، جب میں نے کہ وہ زیادہ آن ہم نے ماشاء اللہ آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو صحیح راہ دکھلا دی، تو جب میں نے اس سے کہا تو کہہ رہا ہاں ہم اس ترجمے کو بالکل غلط مانتے ہیں، غلط نہیں، یہ کفر ہے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ یہ کفر ہے، تمہارے اکابر سے یہ کفریہ کلمات نکلے ہیں، لہٰذا تمہارے اکابر جو ہے یہ کافر ہو جاتے ہیں کفریہ کلمات کہنے دینا پر، تو کہہ رہا نہیں ہم اس کو غلط مانتے ہیں۔ دیکھیے اپنے اکابر کی محبت میں قدر ڈوبے ہیں کہ ان کو غلط اور کفر کا بھی فرق نہیں پتہ چلتا۔
पूरी तमाम उम्मत का इज्मा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई अदना भी तौहीन करे कुफ्र है, अदना भी तौहीन करे वो कुफ्र है। जो माज़अल्लाह कुरान के तर्जुमे जो कि हम कुरान के तर्जुमे पर अकीदा नहीं बनाते, बकौल देवबंदी के ये कुरान के तर्जुमे में कुफ्र दिखा रहा था तो खुद फंस गया ये। तो हमने इसके कुरान के सिर्फ 2 तर्जुमे दिखाए थे, सिर्फ 2। एक सूरह फतह की आयत नंबर 2 जहाँ पे लिखा कि इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतह दी। इससे पहले आप ये भी नहीं जानते थे कि ईमान क्या है और किताब क्या है। बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तर्जुमे में कह रहे हैं कि आप इससे पहले ईमान भी नहीं जानते। तो हमने जब कहा कि ये कुफ्रिया बात नहीं है, ईमान नहीं जानते थे, हम आपके मौलवी को कहते कि तुम्हारा मौलवी तो ईमान भी नहीं जानता था, तो फिर वो तो हम पर कुफ्र का पक्का लगाएगा। तुम काफिर हो, फना हो, तुम बेकार, हमारे अकाबिर को तुमने कैसे कह दिया कि हमारे अकाबिर ईमान भी नहीं जानते। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये कह रहे हैं, हम कुरान के तर्जुमे इनके करके दिखाए, पहला। दूसरा, जब मैंने सूरह दुआ की आयत नंबर 4 दिखाई कि वो ये देखा तो आलन फाजा, ठीक है, इससे पहले हमने आपको गुमराह पाए तो राय हिदायत दिखा दी। आप इनके घर का तर्जुमा दिखा तो ये कह रहा है कि हाँ हम इस तर्जुमे को नहीं मानते, गलत मानते। गलत नहीं, कुफ्र है, इसके नजदीक कुफ्र है ये तर्जुमा, ठीक है। तो देखिए कैसे जब फटा तो भी नाचने लगा, तर्जुमे को छोड़ देता रहा, तर्जुमे को छोड़ो, आप डायरेक्ट घर भी दिखाओ। तो हम भी तो यही कह रहे थे कि तर्जुमे को छोड़ो, आप किताब से पेश करो। मैंने कहा था कि मैं किताब से दिखाऊंगा कि हम नबी अलैहिस्सलाम को बशर मानते हैं, हमारी तरह बशर नहीं मानते, अफजलुल बशर मानते हैं। तो कह रहा है नहीं, तुम अपनी तरह पहले तो कह रहा है कि तुम बशर मानते तुम नहीं हो, न्यू मानते हो, और इसको कोई किताब नहीं मिली, कोई किताब पेश नहीं कर सका आखिर तक, इधर उधर घूमता रहा। ये होते देवबंदी झूठे बना के, इनके बात इनके जबान पे कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है, बोलते कुछ और है, कहते कुछ और है। अल्लाह से लिखते माना कि मैं मस्जिद में था, मैं कहना कुछ और चाह रहा था, मैंने कह कुछ और दिया। ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं। हम लोगों तो फोन काट के भाग देते हैं, किसी दिन सामने बैठे बात करें तो पता चलेगा ना कि तुम क्या होते हैं, भागते फिरते हैं बेचारे दुम दुबा के हमेशा। देख लीजिए इंडिया भर में देवबंदियों का क्या हाल है, हमेशा भाग रहे हैं, कभी मस्जिद से भागते हैं, कभी कहीं से भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता है, ठीक है। हमारे सामने देखिए, हम लोग तो कोई आलिम नहीं है, तालिब इल्म है, तो हमारे सामने इनके बड़े बड़े मौलवी आलिम नहीं सीख पाते। इनका हाल ये फोन करके इनको भागना पड़ता है। बिल्कुल देवबंदी जो है बिल्कुल जाहिल फिरका है, एक देवबंदी जाहिल फिरका है, ठीक है। तो आप इन जाहिलों से दूर रहे, इस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। और हमारा नंबर स्क्रीन पर डाला हुआ है, आप इस नंबर पे कोई भी देवबंदी आपको परेशान करता है, किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए आपको परेशान करता है और किसी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करता है, तबलीगी जमात में लाने की कोशिश करता है, नमाज के रोज़ा के नाम पर बात करता है, किसी भी तरीके से बात करने की कोशिश करता है, तो उनको आप लेकर आए हमारी तरफ, ठीक है, और उनसे बात कराएं हमसे, और उनका एतराज़ यहाँ लेकर आए कि भाई कोई भी बात करना चाहते तो उनसे फ़ौरन बात कराएं, ठीक है। और किसी तरीके से गुमराह करने की कोशिश तो हमारे से बात कराएं, ठीक है। तो आप दुआ में याद रखिएगा और इन जैसे गुमराह से दूर रहें, ठीक है। इसी तरीके से आपको गुमराह करेंगे, अल्फाजों के हेर फेर में आपको उसी को फटा के रखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इन देवबंदियों की बात को हर इंसान नहीं समझ पाता, क्योंकि इससे बारीकी से धोखा देते हैं, हर इंसान को नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो आप दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।